Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video we are going to see another problem in this online assessments problem set, or you can say interview problems. Okay, and that problem is from Amazon interview, and we will see that question. But before that, let's just see what is Newton School. So as we all know that Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program is pay after placement program, under which they will teach you for 6 months, and then they also will get you placed in these different companies which they have tie up with. Okay, and most amazing thing about this program is that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies for minimum of 5 lakh CTC. Okay, so you can just come to their website, and you can also see that applications for full stack development course is open right now, so you can just apply now and get your placement in this season only. Okay, and second thing they have for you is Launchpad initiative. If you want to start learning for free, you can just come to their website and start learning. They have different courses for you, especially designed by educators of Newton School. So you can just opt any course, complete it, and you will also get certificate after completion of these courses. You can do quizzes here, you can participate in coding contests especially organized by Newton School, win cash prizes and referrals for big product based companies. And in the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this YouTube channel where we are uploading regular videos to get you updated for these different playlists for dynamic programming, for JavaScript, for DSA, for C++. Okay, for everything we have playlists for companies, preparations guide, also for online assessment and interview problems. Okay, so now let's just see about today's problem. That is our today's problem is longest consecutive sequence. Okay, so this problem is asked in Amazon interview. Okay, and that's why I'm discussing this problem in this playlist, online assessment and interview preparation playlist. Okay, and approach for this problem is greedy, but I bet you agar aapne problem pehle nahi ki, so it is difficult for you to guess that it is a greedy approach. Okay, now let's just see the problem statement. Given an unsorted array of integer numbers and return the length of longest consecutive element sequence. Okay, मैं अपना सर झुका लेता हूँ ताकि शायद आपको दिख जाए. Given an unsorted array of integer nums, return the length of longest consecutive element sequence. You must write an algorithm that runs in O of n time. This is the main highlight of the question. O of n time की algorithm लिखनी है आप लोगों को. ठीक है, अब क्वेश्चन आई गेस समझ में आ गया होगा. अगर मैं इस एरे की बात करूं, ठीक है, एक अनसॉर्टेड एरे गिवन है और हमें लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस लिखनी है. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव एलिमेंट सीक्वेंस इस एरे में क्या है, तो वो क्या है 1 2 3 4. तुमने 1 से स्टार्ट किया और कंसेक्यूटिवली तुम्हारे पास कितना लॉन्गेस्ट तुम बना सकते हो इस एरे का यूज करके, तुम्हें उसकी लेंथ रिटर्न करनी है. ओके, और ये चीज तुम्हें कंप्लीटली कितने में, O ऑफ n में रिटर्न करनी है. फाइन. ओके, so now pause this video here and just think of an approach. Okay, इसके बाद मैं इसकी approach discuss करूंगा. Okay, so now what you have is you have one unsorted array. Okay, अब तुम इस unsorted array को sort नहीं कर सकते. अगर तुमने इसको sort कर दिया, sort करने के बाद इसकी complexity कितनी जाएगी, n log n. ओके, उसके बाद तो तुम इजीली बता सकते हो क्योंकि 1 2 3 4 सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे, उसके बाद 100 आ जाएगा, उसके बाद 200. तो तुम कहीं से भी चलोगे और कहीं से भी एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है तुम वहां से काउंटर ले लोगे, और काउंटर लेने के बाद तुम्हें 4 लेंथ का एक मैक्सिमम सबसीक्वेंस मिल जाएगा. और तुम मैक्सिमम जहां पे भी ब्रेक होगा, जैसे यहाँ पे ये अनकंटिन्यूटी आई, तो तुम यहाँ पे काउंटर दोबारा स्टार्ट करके वो मैक्सिमम काउंटर की वैल्यू निकाल लोगे. एंड दैट इज एन ईजी अप्रोच. तुम n log n में इजिली ये क्वेश्चन कर सकते हो. ओके, now we are discussing this question on an approach based on O of n solution. Okay, because interviewer will ask you for most optimized solution, and most optimized solution for this question is of O of n log n, O of n approach. Okay, so how are we going to just think of an approach? Suppose मैंने क्या किया, मुझे कोई भी एलिमेंट मिला, that is 1. ठीक है, मैंने 1 से स्टार्ट किया. क्या मेरे पास 2 है? इफ मेरे पास 2 है, आई विल सर्च फॉर अ 3. इफ मेरे पास 3 है, मैं क्या करूंगा, आई विल सर्च फॉर अन 4. इफ मेरे पास 4 है, आई विल सर्च फॉर अ 5.
अगर मेरे पास 5 नहीं है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना जो आंसर है उसको किससे अपडेट कर दूंगा, मैक्सिमम काउंटर से, दैट इज 4, क्योंकि मेरे पास 1 से लेके 4 तक सारे नंबर्स थे। एंड आई विल स्टार्ट विद सम अदर नंबर, दैट इज 100 है। जब मुझे मेरे पास 100 मिला, फिर मैं सर्च करूंगा 101 है, अगर है तो ठीक है, मैं 102 सर्च करूंगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह शुरू किया सपोज, ठीक। ना मैं इस एरे के लिए बताता हूं, मैंने 100 चेक किया, 100 के बाद मैं 101 चेक करूंगा, अगर नहीं है मेरे पास, ठीक है, इन दैट केस व्हाट आई विल सिंपली डू, आई विल से कि मैं यहाँ पे काउंटर अपडेट करता हूँ। अब मैं 4 में आता हूँ, ठीक है, 4 में आया, मैंने 4 के लिए 5 चेक किया, 5 नहीं है मेरे पास, ठीक है, 5 नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, काउंटर 1 से अपडेट कर दूंगा अपना आंसर, एंड आई विल सिंपली गो टू 200। 200 के बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, 201 चेक करूंगा, नहीं है तो मूव अहेड। 1 के बाद मैं 2 चेक करूंगा, 2 है, हाँ है। 2 के बाद 3 चेक करूंगा, हाँ है। 3 के बाद 4 चेक करूंगा, हाँ है, ठीक है। उसके बाद 5 नहीं है, तो आई विल सिंपली मेक माई काउंटर एज 4 एंड आई विल अपडेट आंसर एज मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड सी। ओके फाइन, टिल नाउ यहाँ तक सब सही था। बट हुआ क्या एग्जैक्टली, एक तो मैं सारे नंबर्स पे जा रहा हूँ, ठीक है, एक मैं सारे नंबर्स पे जा रहा हूँ, और एक सारे नंबर्स पे जाने के बाद मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, मैं जितना भी मैक्सिमम लेंथ का मेरे पास आंसर आने वाला है, सपोज मेरे जो आंसर की वैल्यू थी वो थी 4, तो मैंने एटलीस्ट 4 तक वो लूप चलाया जो कि इनर लूप है, टू चेक वेदर एन एलिमेंट इज प्रेजेंट और नॉट। ओके, सो दिस अप्रोच विल मेक माई आंसर कॉम्प्लेक्सिटी और सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी एज n मल्टीप्लाई आंसर्स वैल्यू मैक्स आंसर वैल्यू। ओके, एंड मैक्स आंसर वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी हो सकती है, n। तो इन दिस केस मेरा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा एग्जैक्टली n², बट वी वांट अ सॉल्यूशन फॉर O ऑफ n अप्रोच। ओके, मुझे एक O ऑफ n अप्रोच का सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं कैसे इस सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, ठीक है। पहली बात तो ये कि मुझे अगर किसी भी नंबर के लिए सर्च करना है, दैट वेदर दैट नंबर इज प्रेजेंट इन दिस एरे और नॉट, मैं वो कैसे कर सकता हूं, मैं इस एरे का एक हैश मैप बना लूंगा सिंपली, ठीक है। हैश मैप भी मुझे एक अनऑर्डर्ड मैप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं एक अनऑर्डर्ड मैप बना लूंगा और अनऑर्डर्ड मैप में ये सारी वैल्यूज स्टोर कर लूंगा, ठीक है। एंड टू चेक वेदर एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन दिस एरे और नॉट, आई विल सिंपली डू दैट इन O ऑफ 1 यूजिंग दिस अनऑर्डर्ड मैप, ओके, और हैश मैप यू कैन से। फाइन, आफ्टर दैट व्हाट आई विल सिंपली डू, सपोज मैं किसी एलिमेंट में आया 100, ओके, एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूं, मैं अगर मेरे पास मान लो 100 पहले प्रेजेंट है, ठीक है, मेरे पास जो एरे है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रेजेंट है, तो मेरे पास पहले 100 आया, फिर 99 आया, फिर 98 आया, फिर 97 आया, फिर 96 आया, ठीक है। तो व्हाट आई एम एग्जैक्टली डूइंग इज, मैं सबसे पहले 100 के लिए चेक करूंगा कि मेरे पास 101 प्रेजेंट है या नहीं, फिर 102 प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। फिर मैं 99 में आऊंगा, फिर 99 से आई विल चेक 100 प्रेजेंट है या नहीं, 101 प्रेजेंट है या नहीं, 102 प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैंने किया क्या, क्योंकि मैं 100 के ऊपर की वैल्यूज ऑलरेडी चेक कर चुका हूं पहले, दैट मेरे पास 100 से आगे का सिर्फ इतना सीक्वेंस प्रेजेंट है, ठीक है। मेरे पास 99, जब मैंने यहां पे चेक कर लिया कि 99 से अगर मैं चेक कर रहा हूं तो मेरे पास 2 लेंथ का ही बनेगा, दैट इज 99 एंड 100, ओके। तो अब मैं जब 98 में आऊंगा, ठीक है, मैं 98 में आया, तो एग्जैक्टली जब मैं 98 से चेक करूंगा दैट आई हैव वेदर आई हैव 99 और नॉट, सिंस आई हैव 99, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली कर क्या सकता हूं, क्योंकि 99 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैं 99 ऑलरेडी चेक कर चुका था, ठीक है, तो मुझे 99 से चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस वे यू कैन से कि समवेयर तुम अगर बड़ी वैल्यू का चेक कर रहे हो छोटी वैल्यू के पहले, सो दैट इज नॉट एन ऑप्टिमाइज्ड वे, ठीक है। सपोज मैं बोलूं कि मैंने 99 के पहले 100 का चेक किया, सो दैट वाज अ रबिश थिंग, ओके, बिकॉज अगर मुझे 99 का चेक करना ही है, सो व्हाई आई एम चेकिंग फॉर 100, एंड दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन इन दिस क्वेश्चन, ओके। हाउ, सपोज मेरे पास मैं थोड़ा सा रब करता हूं, सपोज आई हैव 100, 99, 98, 97, 96, ओके। सपोज मैंने बोला कि मैंने पहले 100 का चेक कर लिया था ऑलरेडी, नाउ आई एम चेकिंग फॉर 99, ओके। 99 के बाद मैं 100 चेक करूंगा, 101, तो आई हैव ऑलरेडी चेक्ड 100,
and again I am checking 100 here. So this is a rubbish thing, like this is an unoptimized way. Why I am checking 100 again and again? जब मैं 98 पे आऊंगा मैं अगेन 99 फिर अगेन 100 चेक करने वाला हूं, फिर अगेन 101. So why I am checking bigger numbers again and again? So one optimization what I can do here is कि मैं किसी भी नंबर पे आया 100, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि मेरे पास 100 पे मैं चेक करूंगा दैट वेदर आई हैव 99 और नॉट. अगर मेरे पास 99 है ऑलरेडी, ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेक द सीक्वेंस लेंथ दैट इज बिगिनिंग फ्रॉम 100. ओके, वाई? सपोज जस्ट क्वाइटली सुनना इसको, अगर मेरे पास 100 है और 100 से छोटा नंबर 99 भी है, तो 99 पे जाके मैं 99 से बड़ा 100 और 101 102 चेक करने ही वाला हूं. दैट्स वाई आई विल नॉट डू द सीक्वेंस चेकिंग लेंथ प्रोसेस फ्रॉम 100. दैट इज मैं 100 101 102 103 नहीं चेक करने वाला हूं, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू डू दैट प्रोसेस विद 99 ऑल्सो. ओके, जब मैं 99 में आया मैं चेक करूंगा वेदर आई हैव अ 98 और नॉट. अगर मेरे पास 98 है तो मैं 99 से भी अपनी सीक्वेंस लेंथ चेकिंग प्रोसेस नहीं करने वाला हूं. ठीक है, फाइन. I will go to 98. I will again check whether I have 97 or not. I have 97, so I am not doing that process with 98 also. I will do that. I will now check for 97. Okay, 97 के लिए देखा मैंने 96 भी present है. Okay, so I am not going to do that process of sequence length checking with 96 also. ठीक है, अब मैं 96 पे आया, मैंने देखा कि 95 मेरे पास present नहीं है, तो इस सीक्वेंस में दैट इज 100 99 98 97 96, ठीक है, इसमें सबसे छोटा नंबर जो है दैट इज 96. मैं यहां से अपना सीक्वेंस लेंथ प्रोसेस चेकिंग शुरू करूंगा. ठीक है, और जब मैं यहां से शुरू करूंगा तो जो मेरा 97 98 99 100 मैंने ये चारों का ऑप्टिमाइजेशन कर लिया. दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू चेक फॉर दिस. ओके, सो दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन इन दिस क्वेश्चन दैट आई विल ओनली चेक विद स्मॉलेस्ट नंबर इन द सीक्वेंस. ओके, जो एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस है दैट इज इन दिस क्वेश्चन अगर मैं बोलूं 4 1 3 2, ठीक है, तो मैं इन चारों में से स्मॉलेस्ट नंबर का ही चेक करूंगा दैट इज 1. यहीं से मैं सीक्वेंस चेक करना शुरू करूंगा दैट इज फॉर 1 फॉर 2 फॉर 3 फॉर 4. ओके, फाइन. सो इन दिस वे एक ऑप्टिमाइजेशन तुम्हारा ये हो जाएगा इस क्वेश्चन में. ठीक है, वन मोर ऑप्टिमाइजेशन दैट यू कैन डू इन दिस क्वेश्चन इज व्हेन द नंबर्स आर रिपीटिंग. ओके, when the numbers in this area are repeating. Suppose मेरे पास 96 एक यहाँ पे होता और एक बार अगेन एक 96 होता मेरे पास. ओके, और अगेन एक 96 होता और एक अगेन 96 होता. मेरे पास 4 96 होते. ठीक है, और यू कैन से कि मेरे पास 1096 होते हैं. ठीक है, तो व्हाट आई विल सिंपली, मैं करने क्या वाला हूं, मैं 96 के लिए एक बार चेक करूंगा, मुझे 5 लेंथ मिल गई. अगेन आई विल बी चेकिंग फॉर 96, मुझे फिर से 5 लेंथ मिलेगी. अगेन आई विल बी चेकिंग फॉर 96, मुझे फिर से 5 लेंथ मिलेगी. सो इन दिस वे आई विल बी, अगर 96 रिपीटेबल है तो मैं बार बार 96 के लिए चेक करने वाला हूं. सो वन ऑप्टिमाइजेशन कैन बी हेयर दैट आई कैन रिमूव duplicate values because these values are not going to give any benefits in any way to me. Okay, so I will remove duplicates value firstly from this array. So there will be two optimizations कि अगर मेरे पास कोई नंबर है n और n-1 प्रेजेंट है, so I'll not be checking for n sequence length. सेकेंड ऑप्टिमाइजेशन कि मैं सारे के सारे वैल्यूज रिमूव कर दूंगा जो डुप्लीकेट है. ठीक है, फाइन. So now these were two optimizations in this question and this will reduce the complexity of this solution to O of n. Okay, now I am showing you the code for this question, and if you still have any doubt in this question you can just ask me in comments. I will explain you again, like in time complexity, in two optimizations, or you have any other optimization which you can do in this question, just let me know in the comment section. I will explain you again. Okay, now I am showing you the code for this question. This is the code. I have nums array. In this I have made a unordered set. Okay, unordered set में मैंने सारी वैल्यूज डाल दी. Now मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं nums डॉट साइज लिया और मैंने चेक कर लिया कि अगर nums डॉट साइज 0 है तो आई विल सिंपली मेक द आंसर एज 0. ठीक है, क्योंकि नंबर ही नहीं है तो आंसर 0. फिर एक वैल्यू लिया आंसर, मैंने nums array में इटरेट किया, दो वैल्यूज ले ली, nums ऑफ y एंड y में nums ऑफ i. ठीक है,
एंड सी को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया करंट काउंटर। क्यों मैंने करंट काउंटर 1 से क्यों इनिशियलाइज किया ये देखना, क्योंकि इन एनी केस मेरा जो आंसर है वो 1 तो आएगा ही आएगा। मिनिमम आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इफ nums डॉट साइज इज नॉट 0 दैट विल बी 1 इन एवरी केस। ओके, सो मैंने आंसर यहाँ पे 1 से। नाउ आई विल सिंपली चेक वेदर x के लिए मेरा x माइनस 1 प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो मैं सिंपली कंटिन्यू कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं ये लूप में जाऊंगा एंड आई विल सिंपली चेक कि मेरे पास y के लिए y प्लस 1 प्रेजेंट है, हाँ है, मैं काउंटर इंक्रीज कर दूंगा और y में एक वैल्यू इंक्रीज कर दूंगा। फिर y प्लस 2 प्रेजेंट है, y प्लस 3 प्रेजेंट है, y प्लस 4 प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे करके, सॉरी x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, ठीक है। अगर नहीं प्रेजेंट वहीं पे एल्स ब्रेक कर दो। मेरे पास करंट सीक्वेंस की वैल्यू आ गई, मैक्सिमम करंट कंटिन्यूअस सीक्वेंस कितना है, फिर मैं अपना आंसर अपडेट कर दूंगा मैक्स ऑफ आंसर एंड सी। ओके, एंड एट द एंड आई विल सिंपली प्रिंट द वैल्यू ऑफ आंसर और रिटर्न द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम consecutive sequence, longest consecutive sequence I'll be having in the array. Okay, so thank you guys for watching this video. If you still have any doubt you can ask me in comment section, and this is a good question from an Amazon interview. Okay, and if you haven't checked Newton School yet, just go to newtonschool.co, apply for their full stack development course if you want to get placed in any of these companies for minimum of 5 lakh CTC. And most amazing thing, you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies. And if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this YouTube channel and just get the most out of it. Everything is free in this YouTube channel. Thank you guys for watching.